Hello students, in this video we will start a new chapter of class 11th, that is chapter number 4, complex numbers and quadratic equations. So अब तक जब भी हम quadratic equation solve करते थे और जहाँ पे भी हमारा d का value was less than 0, we used to say that solutions of this quadratic equation does not exist. ठीक है, हम बोलते थे कि इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता या दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल सोल्यूशंस. ठीक है, तो बट इन दैट केस वी शुड नॉट इवन हैव एन इक्वेशन, राइट. हमारे पास इक्वेशन होता था, हम उसे प्लॉट भी कर लेते थे, बट हम बोलते थे कि एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए इट इज़ नॉट डिफाइंड. सो टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ एक्स वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है. सो एन एग्जाम्पल ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन टेक इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम बोलते थे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें d का वैल्यू क्या है, -4, एंड -4 इज़ लेस देन 0, सो नो रियल सोल्यूशंस एग्जिस्ट. बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, अब हमेशा जो क्यू स्क्वायर है फॉर एवरी नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, बट इन दिस केस इट वॉज अ नेगेटिव नंबर, तो हम बोलते थे कि सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ टू केटर दिस प्रॉब्लम वट वी हैव डिफाइंड हेयर इज आई. So this is iota. I is known as iota, is a symbol to define complex numbers. So in this case, I is equals to under root -1. When I is equals to under root -1, this implies that I square is equals to -1 and x का वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर. ठीक है, सो x का वैल्यू इज इक्वल्स टू i. ओके, so this is how we define a complex number where -1 under root of -1 is defined as iota symbol. Okay, this will help us to identify and define all complex numbers. Now complex numbers are of the form a plus iota b. This complex number has a real part in it and an imaginary part in it. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वैल्यू सिर्फ आयोटा के साथ ही होगा. इट माइट हैव अ रियल पार्ट ऑल्सो. ठीक है, सो अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ दिस, देन वी विल से लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, देन वी विल से दैट रियल पार्ट ऑफ जेड इज ए and imaginary part of z is b. ठीक है, you don't have to write I here because I itself means the imaginary part. So we will say that A is the real part and B is the imaginary part. So real numbers can be of the form, जैसे यहाँ पे आपको given है 2 plus iota 3 minus 1 plus iota under root 3 4 plus iota minus 1 upon 11. So all the parts of the number where iota is not multiplied is known as the real part, and wherever iota is multiplied is known as the imaginary part of that complex number. So we'll quickly do an example here. So in example number 1, we are given a number 4x plus iota 3x minus y is equals to 3 plus iota minus 6. We are told that x and y are real numbers. We have to find the values of x and y. So these are two complex numbers जिनको equate किया गया है. So while doing this, what we do is we equate the real part of first complex number with the second complex number and imaginary part of second complex number with the imaginary part of second. So equating real parts, we get 4x is equal to 3, and equating imaginary parts we get 3x minus y is equal to -6. पहले x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू आएगा 3/4. नाउ यूजिंग दिस x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वी विल गेट 3 into 3/4 minus y is equal to -6. So that means 9/4 plus 6 is equals to y. Y is equals to 33/4. ठीक है, मूविंग ऑन टू द एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज़ इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, लेट्स से a plus ib and second is c plus iota d, then when you add these both complex numbers, you will add real part with the real part and imaginary part with the imaginary part.
ऐसे ऐड करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसके कुछ लॉज हैं जो जनरल हैं। क्लोजर लॉ मीन्स कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट तो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब चाहे Z1 + Z2 कर दो, चाहे Z2 + Z1 कर दो, आंसर विल बी द सेम। एसोसिएटिव लॉ इज़ ऑल्सो द सेम। 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो पहले 2 नंबर्स को ऐड करके तीसरा बाद में ऐड कर दो, या फिर लास्ट के 2 नंबर्स को पहले ऐड करके तीसरा पहला बाद में ऐड कर दो, इट्स गोइंग टू बी द सेम। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, दैट आप एक नंबर में क्या ऐड करें कि उसका रिजल्ट वही नंबर हो, ठीक है। सो इन दिस केस 0 आप ऐड करेंगे, ठीक है, बट अगर आपको इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाना होगा तो 0 + i0, दिस इज़ द एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एंड एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि आप एक नंबर में क्या ऐड करें कि उसका आंसर 0 हो, तो आप एक नंबर में उसका नेगेटिव पार्ट ही ऐड करोगे ना, ताकि उसका आंसर 0 हो। तो अगर आपको z गिवन है a + i/b, तो अगर आपको इसका आंसर 0 करना है तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, आप इसमें -a ऐड करेंगे ताकि वो रियल नंबर को कैंसिल आउट कर दे। देन आप इसमें -i/b ऐड करेंगे ताकि वो इमेजिनरी पार्ट को भी कैंसिल आउट कर दे। तो z का जो एडिटिव इन्वर्स है दैट विल बी -z, ठीक है। सो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स। देन अगेन डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी सेम सिंपल वे में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, अगर आपको 2 नंबर गिवन है जैसे यहाँ पे, जब आप उनको ऐड करेंगे तो यू विल मल्टीप्लाई इट नॉर्मली। जैसे a + i/b गिवन है एंड मल्टीप्लाई करना है c + i/d से, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सिंपल, a को c के साथ, फिर i/ad + i/bc + i²bd। अब आयोटा का वैल्यू क्या है, -√1 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम -bd। तो रियल पार्ट्स को अगर अलग कर लें तो ac - bd अलग हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करें तो ad + bc हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स द सेम। जैसे नॉर्मल हम काम करते हैं ना, यू कैन कंसिडर आई एज अ वेरिएबल, और जहाँ पे भी i² आ जाएगा, जहाँ पे हम उसका वैल्यू पुट कर सकेंगे तो विल पुट द वैल्यू, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ लॉज हैं कि क्लोजर लॉ, अगेन क्लोजर लॉ स्टेट्स दैट कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन कॉम्यूटेटिव लॉ कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लो या Z2 को Z1 से, बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ इज़ ऑल्सो द सेम कि Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरा बाद में कर दिया, देन पहला बाद में कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स कि z को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर z ही आए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट 1 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कि रियल पार्ट तो 1 है बट इमेजिनरी पार्ट इसका जो है वो 0 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कि आप उसको किस से मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर है 1 आए, ठीक है। तो 1 बाय उसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे z है तो z को a + i/b गिवन है, अभी हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारे पास है 1/a + i/b, ठीक है। अब इसको अगर हमें रैशनलाइज़ करेंगे तो रैशनलाइज़ हम इसको ऐसे करेंगे, तो जब हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे तो हमारे पास ये फिगर अपने आप बन जाएगा, बट द मेन कंसर्न इज़ कि 1/z दैट इज़ द रेसिप्रोकल इज़ द एडिटिव इन्वर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि Z1 को Z2 + Z3 से मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लो अलग अलग फिर ऐड कर दो, चाहे ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिवीजन पे, तो डिवीजन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जहाँ पे डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ वेरी सिंपल अगेन, बिकॉज यहाँ पे आपको एग्जांपल से बताया गया है, आपको Z1/Z2 को डिवाइड करना है, Z1 को Z2 से डिवाइड करना है, तो आप Z2 को क्या कर सकते हो, आप उसको रैशनलाइज कर सकते हो Z2 को पहले, ठीक है। देन मूविंग ऑन,
वी हैव फ्यू पावर्स ऑफ आई. जब हमें पता है कि आई इज़ अंडर रूट ऑफ -1, देन आई स्क्वायर इज़ -1. फिर आई क्यूब क्या हो जाएगा? आई क्यूब विल बी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज़ -1 and I is I. So I cube is nothing but it is equals to -I. ठीक है. Then similarly I4 will be equal to 1. I5 will be equal to I. तो यहाँ पे उसका लॉजिक भी गिवन है, एक बार यू कैन गो थ्रू. सो यू विल अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट के बाद आई की वैल्यू रिपीट होने लगती है. सो आई की वैल्यू I1 पे क्या है? आई. ठीक है. आई स्क्वायर क्या है? -1. आई क्यूब क्या है? -I. I4 क्या है? 1. ठीक है. देन I5 क्या है? I. तो यहाँ के बाद अगर आप देखेंगे तो I6 जो है दैट विल बी -1. तो ये जो है 5 तक इसकी वैल्यूज़ यूनिक है, उसके बाद ये रिपीट होने लग जाती हैं. ठीक है. तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. देन वी हैव स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर. तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. देन -I का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1. तो -1 के जो स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है, दैट विल बी आई और -I. क्योंकि -I का स्क्वायर करेंगे तो भी -1 आएगा, आई का स्क्वायर करेंगे तो भी -1 आएगा. तो जो -1 के रूट्स हैं दैट विल बी आई एंड -I. ठीक है. दिस इज़ द मेन लॉजिक हियर. Then again, moving on, there are some identities which are very similar to the ones that we have already studied, right? A minus b का whole square, a square minus 2ab plus b square, a plus b का whole cube. It's just that कि जब आप z1 और z2 की डिटेल्ड वैल्यूज़ इनमें पुट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होके फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है. अदरवाइज इट्स द सेम जो हमने जनरल पढ़ी हुई है. ठीक है. देन देर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर वी हैव टू express these given equations in the form of a plus iota b. So we have -5i and 1 upon 8i. So this is equals to -5 upon 8i square. This is equals to -5 upon 8 minus 1 because I square is -1. So this will be 5 upon 8. But क्योंकि हमें iota के फॉर्म में भी लिखना है तो we will just add 0 of iota. Then we have second part. Second part is minus iota 2 iota minus 1 upon 8 iota whole cube. तो इसमें पहले फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट वी गेट 2 iota माइनस स्क्वायर. देन इसको 8 को बाहर निकाल लेंगे, -1 upon 8 होल क्यूब इंटू आयोटा क्यूब. अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1. तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा 2. ठीक है. इसको अभी मैं नहीं छेड़ रही हूँ. उसके बाद आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. सो दिस विल बी सिंपली आयोटा सॉरी माइनस आयोटा. अब ये माइनस का वैल्यू क्यूब में है तो टोटल माइनस का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास क्या है? 2 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन 8 होल स्क्वायर आयोटा. इसमें मैं इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ. सो वी हैव 1 अपॉन 4 इंटू 64 आयोटा. 4 4 ज़ा 16, 4 6 24, 1 अपॉन 256 आयोटा. और रियल पार्ट इज़ 0, तो 0 प्लस 1 अपॉन 256 आयोटा. ओके. देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 3. हेयर वी हैव 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब. तो आइडेंटिटी हमें ऑलरेडी पता है. दिस विल बी ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. ठीक है. दिस विल बी 125. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 9 विल बी 225. देन 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 40, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 5 विल बी 135.
देन यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -27 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा वाले पार्ट को एक साथ ऐड कर लेंगे और रियल पार्ट्स को एक साथ। सो व्हाट वी विल गेट इज -10 -198 iota. Okay, then example number 4. Here we have -√3 plus minus √2, then 2√3 minus iota. तो सबसे पहले तो देखो ये रियल पार्ट है बट ये इमेजिनरी पार्ट है बिकॉज -1 का अंडर रूट इज आयोटा, सो दिस विल बी 2 आयोटा. ठीक है, सो दिस इज़ रियल पार्ट अगेन एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट. अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट -2 3 6, इसको इससे किया तो देन वी गेट +√3 आयोटा, देन वी गेट +4√3 iota, then we get -2 iota square which will become 2. ठीक है, तो रियल पार्ट को ऐड करेंगे -4 then we get 5√3 iota. Okay, I think there is some mistake, is it? Okay. ओके सॉरी, यहाँ पे √2 पे तो 2 रहेगा ही. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या गलती किया, मैंने आयोटा को अलग कर लिया बट मैंने 2 को भी रूट से बाहर निकाल लिया विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आयोटा अलग लिख सकती हूँ. सो -√2 कैन बी रिटर्न एज -1 का अंडर रूट एंड 2 का अंडर रूट. ठीक है, तो यहाँ पे √2 एज इज रहना था. तो अभी हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो विल गेट -6 then +√3 iota, then +2√6 iota माइनस यहाँ पे आ जाएगा -√2. ठीक है, +√2. तो रियल पार्ट क्या है, -6 +√2 और +√3 iota 1 + 2√2. Okay, then last concept of this exercise or this chapter is modulus and conjugate. So ये बहुत सिंपल है. Modulus of a complex number a plus iota b is equals to the under root of a square plus b square. ठीक है, and then conjugate which is represented as zq per bar of a plus iota b is a minus iota b. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, दिस इज़ द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस का सिस्टम. एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी विच विल बी हेल्पफुल दैट z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर. ठीक है, कैसे आया ये, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट a स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर. अब माइनस आयोटा स्क्वायर इज इटसेल्फ -1, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हमें पता है कि मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट. तो जब इसका स्क्वायर करेंगे so that's how it is derived. Okay, similarly there are a few simple identities, that is modulus of two complex number का multiplication is चाहे उनका अलग से मॉड्यूलस लेके फिर मल्टीप्लाई कर दो. सिमिलरली डिवीजन में भी चाहे अलग अलग मॉड्यूलस लेके फिर डिवाइड कर दो. सिमिलरली कॉन्जुगेट में भी ऐसा ही है, चाहे मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले लो चाहे कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दो. सिमिलरली प्लस माइनस में भी एंड डिवीजन में भी. तो यू कैन आइदर टेक कॉन्जुगेट बिफोर एंड देन कैन मल्टीप्लाई और यू कैन टेक कॉन्जुगेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, क्विकली वी विल डू 5th and 6th एग्जाम्पल, देन वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज.